پیدا ہوئے تو لمحۂ مبارک ہل رہے تھے. لمحۂ مبارک ہل رہے تھے. لمحۂ کا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ لمحۂ کا مطلب سمجھے؟ نہیں سمجھے. اسی لیے میں پوچھ دیا کہ صحیح میں کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. لمحۂ کا مطلب ہوا لب، ہونٹ. ایک مجلس نکاح میں قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے ٹائم میں دولہا بابو سے پوچھ دیا کہ طہارت سے ہو، طہارت ہے؟ تو وہ بیچارے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ طہارت کس بلا کا نام ہے. اس نے جواب دے دیا کہ ابا جان کو پتا ہوگا. ابا جان بھی قریب ہی میں تھے، دولہا کا باپ تھے نا، سینہ تان کے بیٹھے تھے. قاضی صاحب نے دولہا کے باپ سے پوچھ دیا طہارت ہے، دولہے کی طہارت ہے؟ اب وہ بیچارہ وہ باپ بھی ویسا ہی تھا، وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ طہارت کس جانور کا نام ہے. کہنے لگا طہارت تو پیٹی میں رہ گئی اور پیٹی کی کنجی گھر رہ گئی. قاضی صاحب کو بڑی ہنسی آئی. کہنے لگے بھائی تم لوگ عجیب انسان ہو، میں پوچھ رہا ہوں لڑکا طہارت پر ہے کہ نہیں، یعنی باوضو ہے کہ نہیں، وضو سے ہے کہ نہیں لڑکا. تو یہ بولتا ہے ابا جان کے پاس ہے، ابا جان بولتے ہیں پیٹی کے اندر ہے، پیٹی کی کنجی گھر میں رہ گئی. یہ کیا تماشا بنا رکھا آپ لوگوں نے. اب تو دولہا کا باپ بیچارہ جو سینہ تان کے بیٹھا تھا سیدھا چھوٹ گیا. شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور شرمیلی انداز میں کہنا شروع کیا حضرت کیا پتا ہم کو، میں تو سمجھا کہ آپ لوگ عربی میں خورما کو طہارت کرتے ہیں. کچھ کہنا؟ برماسا. اچھا چلیے اسی کو پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد. اچھا تو سرکار پیدا ہوئے تو لمحۂ مبارک ہل رہے تھے اور کیا اس سے آواز نکل رہی تھی؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا. گویا کہ میرے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اپنی غریب گنہگار سیاہکار خطاکار امت کو یاد کر کے پیدا ہو رہے ہیں. میدان محشر میں جب میری امت پریشانی میں ہوگی کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. 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 رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ. آخر میں جمع مولانا جمع تبلیغ. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیا کیا بولیں. اور یہ آخر میں تو جناب جمیل قادری صاحب نے تو قلم ہی توڑ دیا ہے. کتنا پیارا شعر لکھے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہنا پڑے گا سبحان اللہ کہیے، مجھے نہیں لگتا ہے. سب لوگوں کی زبان خود بولے گی. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد.
सलाम। रब हबली कहते हुए मेरे मुस्तफा पैदा हुए। हम गुनाह करें, खता करें, मासियत में डूबे रहे, ताड़ी हम पिए, दारू हम पिए, शराब हम पिए, जुआ हम खेलें, रब की नाफरमानी हम करें, और हमारे लिए हमारे मुस्तफा परेशान है। अल्लाह, हमारी फिक्र वो करें। हम रात और दिन मासियत में डूबे रहते हैं, गुनाहों से जिंदगी लथपथ हो गई हमारी, लेकिन हमारे मुस्तफा हमारी फिक्र पैदा होते कर रहे हैं और दुनिया से जाते भी कर रहे हैं। कभी ख्याल आया जिस नबी ने हमें इतना याद किया, जिस नबी का करम हमारे ऊपर बाल बाल करम, उसके करम, उनके करम से डूबा हुआ है, उनके फरमान पे हम चले? ताड़ी पी रहे हैं दिन दहाड़े, शराब पी रहे हैं, क्या हमारे पैगंबर ने शराब को हराम करार न दिया? क्या कुरान पाक में शराब को हराम करार न दिया? सरकार की मिलाद मनाने वालों, सरकार की मिलाद मनाने का मतलब ये हुआ कि आप इस बात का ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी आमद की बरकत से तरह तरह की नेमतें हमको मिली, लिहाजा आपके पैगाम पर, आपके फरमान पर हम अमल करते रहे। शराब पीते वक्त ख्याल आया कभी? अच्छा, एक बात आपको तजर्बे की बताऊंगा। दुनिया में जितने शराबी हैं, दुनिया में जितने शराबी हैं, आप उनके घर का जायजा लीजिएगा तो पता चलेगा कि उसकी बीवी उससे नाला रहती है, परेशान रहती है, बच्चे उससे परेशान रहते हैं, बीवी नफरत करती है। शराब पीकर आता है, मुंह में बदबू लेके जाता है और बीवी के पास जाता है, बीवी नफरत करती है, खबीस कल होकर मनीषा के पास पहुंचता है ताबीज लेने के लिए। काहे के लिए ताबीज चाहिए? तो बीवी हमसे नफरत करती है। तो तुम अपने आप को इंसान तो बना लो, काहे को नफरत करेगी? ये हैवान क्यों बना रखा है खुद को? शराब पीना, हजरत अली फरमाते हैं कि शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए, फिर वो समंदर का पानी सूख जाए, फिर उसके बाद उसकी जमीन से सब्जी निकले, तो हम उस सब्जी में अपनी ऊँटनी को नहीं चलाएंगे। अल्लाह, इतनी नफरत शराब से। शराब इंसान की अकल को खराब कर देती है, उसके दिमाग पर हमला कर देती है, शराब इंसान के अखलाक को बिगाड़ देती है, शराब इंसान की इज्जत पर हमला कर देती है। शराबी इंसान माशरे में इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता। यही वजह है पानी पीना हो तो मजमा में पिया जाता है, शराब पीना हो तो कोना में चला जाता है। गलत है कि सही है? बार बार आते में भी शराबी को देखिएगा, बेहुदा लुच्चा लफंगा की तरह गली गली घूमता रहेगा, शराब की तलाश में गली गली घूमता रहेगा, और पूछेगा भी तो चुरा चुरा करके पूछेगा। तो अपने जमीन से कभी सवाल करो कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो किस कदर नापाक है कि उसकी तलाश में तुम्हें चोरों की तरह जाना पड़ता है। कभी दूध पीने वाले को इस तरह चोरी छुपे नहीं जाते देखेंगे, पानी पीने वाले को इस तरह चोरी छुपे जाते नहीं देखेंगे, शराब पीने वाले को देखिएगा लेकिन मेरा चोरों की तरह गली गली घुमाता रहता है। पता चला कि शराबी को माशरे में भी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। खुदा की बारगाह में जो कुटाई पिटाई ठोकाई होगी वो तो अलग है। रिश्तेदार, अच्छे रिश्तेदार आज लड़की तलाशते हैं, लड़का तलाशते हैं, घर देखी जाते हैं तो सबसे पहले मालूम करते हैं कि इस घर में कोई शराब पीने वाला है कि नहीं। इससे पता चला कि इंसानी मुआशरे में भी उस इंसान को इज्जत से जीने का हक नहीं है जो शराब है, शराबी है। दोस्तान मोहतरम, आज इस मिलादुल नबी की बरकत से, इस महफिल मिलादुल नबी में शिरकत की बरकत से इस बात का अज़्म करें, खुदा न करे कि इस महफिल में कोई शराबी हो, और अगर हो तो दिल से तौबा कर, दिल से तौबा कर लीजिए ताकि मिलादुल नबी मनाने का आपको फायदा मिल जाए। हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब से मना फरमाया तो हमें मना हो जाना चाहिए। इंसानियत भी इसको मना करती है, शराब भी इसको मना फरमाती है। लिहाजा मिलादुल नबी की महफिलें और जलसे और कॉन्फ्रेंस से और जो जुलूस सजाने वाले जरूरी है कि आप पैगाम मुस्तफा पे अमल करें, मिलाद मुस्तफा भी मनाएं, पैगाम मुस्तफा पे अमल करें, मिलाद
पूरा पूरा फायदा नसीब हो। हक है, हक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारक में आने वाले इस बात का खूब ध्यान रखें कि हुजूर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी जिंदगी अता फरमाई है, कौन सा अखलाक अता फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसान को इंसानियत की मेराज अता फरमाई, अच्छे अखलाक से आरास्ता पैरास्ता किया, हर बुरी आदत से इंसान को अलग कर दिया। वो नबी रफ़ात इस दुनिया में आए, कौन सी तारीख थी? तारीख कौन सी थी? भूल गए? तारीख कौन सी थी? 12 रबीउल अव्वल। महीना भी आपने बता दिया। दिन कौन सा था? कौन शहर था? कौन सा दिन था? वाह माशाअल्लाह। मक्का। बोलवे समैया रहल दिनवा सोमवार हो, बोलवे समैया रहल दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भैलन जग के सरदार हो, मक्का में पैदा भैलन अगम गम बदनवा गम के चमके लीलार हो। इतने चमकते थे हुजूर कि हजरत माई आमना फरमाते हैं, हुजूर की अम्मी फरमाती हैं कि जब मेरा दूल्हा, मेरा बच्चा, मेरा नूर नजर पैदा हुआ तो मेरी छत फट गई और मैंने अपने घर में बैठे बैठे मक्का में रहते हुए मुल्क के शाम के महलों को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। गम गम बदन गम के चमके लीलार हो, रहमत की बरसे लागल, रहमत की बरसे लागल, रिम झिम फुहार हो, रहमत की बरसे लागल। ये बड़ा अच्छा शेर है, मुझे लगता है कि इस पर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सुभान अल्लाह कहिए। अपने आप बोलिएगा, आपके लब हिलेंगे, आपकी जबान हिलेगी। देखिए कितना अच्छा शेर है। हुजूर की ताज़ीम को काबा छुप रहा है, मेहराब काबा छुप रहा है। मेहराब काबा झूकल झूकल मीनार हो, मेहराब काबा झूकल झूकल मीनार हो, बुतवन के टूटल देगिया, बुतवन के टूटल देगिया, फूटल का पार हो, बुतवन के टूटल देगिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, मरहबा नूर नूर बनकर आए हैं, काले दिल को मुनव्वर फरमाया, जिन दिलों में कुफ्र की तारीकी थी ईमान का सवेरा भर दिया। हुजूर की नूरानियत का ये आलम है, ज़ाहिरी तौर पर भी नूर और बातनी तौर पर भी नूर। ज़ाहिरी नूरानियत का ये आलम है कि हजरत जाबिर फरमाते हैं और हजरत अबू हुरैरा भी फरमाते हैं, एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम लाल धारीदार चादर ओढ़कर आंगन में सो रहे थे और हुजूर का चेहरा मुबारक खुला हुआ था। वो कहते हैं जनाब हजरत अबू हुरैरा कि एक नजर में आसमान के चांद को देखता था और एक नजर आमना के चांद को देखता था। एक नजर आसमान के चांद को देखता था और एक नजर आमना के चांद को देखता था। दोनों चांद को देखता था तो फिर दिल ने फैसला किया कि उस आसमान के चांद से तो आमना का चांद ज्यादा रोशन है। शम्सा तजरी फी वजही, गोया कि सूरज आपके चेहरे में टहलता है। इतना रोशन और ताबा आपका चेहरा मुबारक था
یہ تو آپ کی ظاہری چمک، ظاہری نورانیت اور باطنی نورانیت بھی دیکھ لیجئے۔ جلدی جلدی ایک بات کر کے اپنی بات اب ختم کروں، پھر بارہماسہ سناؤں، پھر سلام کرے کھڑے ہو جائیں۔ تو باطنی نورانیت بھی دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ